ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਨੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਪੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਪੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਅ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਸਵੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ।
ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਲਗਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜ ਗਈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਇੱਕ ਖਿਣ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਭਵਿੱਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਛਿੱਲਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚਵੜ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ
फिर आनंदगढ़ का किला छड्डिया, सरसा दरिया के किनारे परिवार दे विछोड़े पे। वड्डे साहिबजादे किवें चमकौर दी गढ़ी दे बाहर लखां दा मुकाबला करते हुए पुरजा पुरजा हो के मानो लहू नाल लथपथ उन्हां दे शरीर पे हन। देखिया छोटे साहिबजादे नूं जिंदा नींद चिन के शहीद किया जा रहा, कहर ढाया जा रहा है। दौड़ के आए माता जीतो जी, गुरु कलगीधर पातशाह आने वाले समय ये भाने वरतने। कहेंगे तुसी देख लिया आत्मिक शक्ति की वरतों करके, हाँ इसे तरीके होना है। पति गुरदे तुसी सर्वकला समर्थ हो ते चाहो ते ये सब कुछ बदल सकते हो। कहने लगे नहीं, गुरु नानक जी के घर की खेड ऐसी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जो भाना वरतना असी उन्हों हुक्म नूं सत सत करके मनना है, मिठा करके मनना है। इसे तरीके होवेगा ये कुर्बानियां होनियां। चारे साहिबजादे असी पंथ तो कुर्बान करने हैं। पति गुरदेव जी मैं नहीं देख सकती, मैनू आज्ञा दो। फिर कह लगे जिवें तुहाडी इच्छा। ते माता जीतो जी चले गए। चौंकड़ा मार के उस तो पहला अपने सब तो छोटे पुत्र साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दी उम्र उस समय लगभग 2 साल 7 महीने के करीब, माता गुजरी झोली च पाया। मां हुण तू इहदी कल दादी नहीं बल्कि मां बन के भी तू ही पालना है। मैं जा रही हाँ। कित्थे जा रही है जीतो? मैं उत्थे जा रही हूं जिथों कदी कोई वापस परत के नहीं आया। प्यारो ये कह के माता जीतो चले गए। चौंकड़ा मार के दसम द्वार च प्राण टिका के श्वासां नूं त्याग्या ते वाहिगुरू दे चरण च लीन हो गए। ते माता जीतो दा फिर अंतिम संस्कार अगमगढ़, जिथे होलगढ़ गुरुद्वारा ना उनके नेड़े ही माता जीतो दा जिथे देहर है, अंतिम संस्कार उत्थे किया गया। कहण तो भाव माता जीतो जी ने सब कुछ पहले ही देख लिया सी। ते प्यारिओ हुण उस समय दी विचार करिए जदों माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे नूं विशेष तौर ते बाबा फतेह सिंह जी नूं जिहड़े सब तो छोटे, जिथे दादी वाला प्यार दिंदे सन उत्थे मां वाला ही प्यार दिंदे सन। रूह नूं ना दुध विच गिला करके भे के मुख च पाउंदे सन, इस तरह भी दुध पिलाउंदे रहे। ते आइए क्योंकि समा सीमत संखेप विचार सन 1704 रात्रि का समा 6-7 पो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने आनंदगढ़ साहिब का किला छड्डिया। अजे किरतपुर साहिब के कोल पहुंचे सन। 10 किलोमीटर दूरी ते अजे गए ते पिछों राजा भीम चंद वर्गे, वजीर खां वर्गे इन्हां मुगलों ने जिन्हां ने कसमां चुकियां सन कुरान शरीफ दियां। हिंदू राजियां ने, पहाड़ी राजियां ने गां नूं माता कह के गीता दियां होर धार्मिक ग्रंथां दी कसमां चुकियां सन, पर उन्हां कसमां नूं छिक्के दे टंग ते हमला कर दिता। बारिश भी पै रही सी, बदल भी गरदे पे सन। गुरु कलगीधर पातशाह ने भाई उदय सिंह नूं अगे कीता, 50 सिंघां जत्था दे के मुकाबला करदा बचन कीता ते शाही टिब्बी दे भयंकर फिर जंग हुंदी है। इधर गुरु कलगीधर पातशाह परिवार समेत चेते रखना, ये तो गुरु कलगीधर पातशाह ने खेड वरताई, होर किसी सिख दा परिवार नाल नहीं सीगा, कोई होर सिंघनी नहीं सी उत्थे।
कोई होर बजुर्ग नहीं सीगा, ना कोई होर बच्चा सी। गुरु कलगीधर पातशाह ने मई के महीने घेरा पैण तो पहले ही सिखां नूं आख्या अपने परिवारां नूं, अपने बजुर्गां नूं, अपने बच्चों नूं अपने टिकाणे सुरक्षित थां ते पहुंचा देवो। अपना परिवार नाल रखिया सी, क्योंकि परिवार कुर्बान करना है, क्योंकि चारे साहिबजादे वारने हन। ते प्यारिओ इस तरीके शाही टिब्बी ते भी जंग होई, फिर सरसा दरिया के किनारे ते अमृत वेला हो चुका सी। पिछों शाही लश्कर भारी गिनती च आ रहे हमला कर रहे हैं ते गुरु कलगीधर पातशाह ने भाई जैता जो भाई जीवन सिंह बन चुके सन अमृत छक के, कहता तुसी मुकाबला करो। इधर अमृत वेला दीवान सजा दिता, गुरु की बन दे जप जाप और एक पासे भगती दूजे पासे शक्ति वरतदी पई है। गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल ही माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे सामने गोद च बैठे माता गुजरी दे देखते पे। इधर दीवान की समाप्ति अरदास हुई, कहर दा हमला हो गया इन्हां जालमां वल्लों। सरसा दरिया जिस च हड़ आया होया सी, आकाश च बदल गरजदे पे, मीह पैंदा पे, ठंड बर्फीलियां ठंडियां हवावां चलदियां पियां, बर्फ वांगू ठंडा आगदा सरसा दरिया दा पानी छा छा करदा होया वगदा पिया। 1500 सिंह नाल सन गुरु कलगीधर पातशाह दे, पर जदों सरसा दरिया पार कीता ना ते लगभग 150 सिंह नाल सन। दरिया च शरीर सुन्न हो गए, जिहड़े घोड़ियां ते सन वो तो चलो पार लंघ गए, जिहड़े घोड़ियां तो बिना सन पैदल सन वो किवें पार लंघदे। शरीर सुन्न हो गया, बर्फीले पानी ठंडे पानी च तैर भी ना सके, च डुब के शहीद हो गए, कुछ परे दूर विछड़ गए। प्यारिओ कहर दी इत्थे फिर गुरु कलगीधर पातशाह दा परिवार जोड़ा किसे पासे, जोड़ा किसे पासे, परिवार विछड़ गया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी इधरों घनौली वालों खुंदे हुए लोधी माजरा फिड्डे पिंड वालों खुंदे हुए कोटला निहंखां दी हवेली पहुंचे। भाई बचित्तर सिंह सो सिंघां दा जत्था लैके इधरों मलकपुरे लोग हुंदे गए तो उत्थे जंग हुई, जिथे बहुत जख्मी हो गए सन, उत्थे कई सिंह भी शहीद हो गए सन। इधरों फिर अगे अगला वो इतिहास चमकौर दी गढ़ी वाला। आपां इधर विचारदे छोटे साहिबजादे अते माता गुजरी जी। प्यारिओ सरसा दरिया नहीं पार किया, सरसा दरिया के किनारे किनारे चलते गए, सरकंडे चो झाड़ी चो दरख्त चो इस तरीके दिन चढ़ गया, लुकदे लुकदे चलते गए। ते जदों अजे दिन नहीं सी चढ़िया, रात्रि का कोई समा सी, पिछल रात का समा, ते साहिबजादे पिछे देखते हैं पिता जी दिसते नहीं पे, कोई सिंह नहीं दिसता पिया, ना वड्डे साहिबजादे। ते उस में आपस में विचार करते, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गई। वो सिंह सिपाही किधर चले गए, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए। दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए, तड़पा के हाय मूर्त माही किधर गए। असी तड़पदे पे हां, सानू पिता जी नहीं दिसते पे, वड्डे भरा सिंह सूरमे नहीं दिसते पे, असी तड़पदे पे, तड़पा के हाय मूर्त माही किधर गए। अब्बा भगा कर लश्कर शाही किधर गए। पिता जी जंग जूझते पे सन, वैरियां नूं भाजड़ा पाउंदे पे सन, पर दरिया चो लंघ गए, पता नहीं किधर चले गए। फिर इधर अब्बा भगा कर लश्कर शाही किधर गए। फिर भाई भी हमें भूल गए जो कि जंग में। उन्होंने तो सदा चाह हुंदा सी समा आवे जंग च जूझीए, और रोजाना गतके का अभ्यास करते सन। आखदे समा आवेगा जोहर दिखावांगे जंग के मैदान च। अज जंग का समा है तो जोहर दिखान लग गए। जंग च इतने मस्त हो गए, वो चाहते सन असीं बंदूक नाल गोलियां चलाइए, तूफान नाल गोलियां चलाइए। वो गोलियां चलाण च तीर चलाण च इतने मस्त हो गए, अपने छोटे भरावां नूं भुल गए। असीं आखर छोटे ते साडा ख्याल नहीं रखिया उन्होंने। भाई भी हमें भूल गए जो कि जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जो कि तुफंग में। ते बाबा जो
जोरावर सिंह नूं कहण लगे बाबा फतेह सिंह चलो हुण विछड़ के फिर समा आवेगा, आवणगे ना जंग च जित के प्राप्त करके आ जाएंगे। जब रन अजीत जीत कर तो शरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस गड़ी जुजाहर आएंगे, करके गिला हर एक सिम रूठ जाएंगे। जदों आवणगे ना जंग का मैदान जित के असी रुस जाना है, करके गिला हर एक सिम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कभी माता साहब कौर कभी माता सुंदर कौर सानू मनावेगी, भरा मनाएंगे असी मनना नहीं। मन जाओ कहेंगे बार बार, लेकिन हम नहीं मानेंगे जीनहार, असी बिल्कुल नहीं मनना। इस च आपस च गल्लां करदे पे उस भयंकर ठंड बर्फीलियां हवावां चलदियां पियां, तुरे जांदे हन माता गुजरी दे नाल आपस च गल्लां करदे। पर इधर माता जी विचारते हैं दरपेश इन करीब कोई इम्तिहान है, खतरे में दिख रही बच्चों की जान है। जिस समय का जिक्र किया सी मेरे पति गुरदेव गुरु तेग बहादुर महाराज ने, असी जा रहे दिल्ली सीस देन लई, असी कुर्बानी करन जा रहे हैं ते डोलना नहीं। कहन लगे पति गुरदेव जी तुसी बाणी दा पाठ तां पढ़ाया ते मैनू आखदे समा अगे होर भयंकर सवाना, कुर्बानियां बहुत करनियां पैणियां ने, ते किते मैं डोल गई। तुसी इह शहीदी वाला पाठ तां पढ़ाया नहीं। कहणगे जो साडा सीस लैके आवेगा ना भाई जैता जी, ते साडे लहू नाल लथ पथ होए सीस नूं तू देखेंगी ते शहादत दा पाठ अपने आप आ जाएगा। चेहरा खिड़िया होया देखिया सी पति गुरदेव गुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस दे दर्शन कीते, अंदर चाह बन गया ओ कदों समावे जदों मैं भी कुर्बानी करा। पर अरदास कीती पति गुरदेव जी तुहाडी सिੱਖੀ केसा सवास से निभ गई, मेरी भी निभ जावे। ते अज देखदे ओ समा लगदा नेड़े आ गया, हुण साहिबजादे दी कुर्बानी होनी। मेरे पुत्र ने पहले ही कहते चारे लाल वारने हन। दरपेश कोई इम्तिहान है, खतरों में दिख रही बच्चों की जान है। अगे तुरे जा रहे सन ते इत्थे गंगू ब्राह्मण मिल गया। उस दिन चलते हुए अगे कलंगे रात्रि का समा सी, 7 पो दी रात का समा हो गया ना जदों, ते दूर दीवा जगदा देखिया। नेड़े जाके पता किया ओ कुम्मे माही दी झोंपड़ी सी, नाल ही दरिया च ओंदी बेड़ी खड़ी सी। ते उत्थे पुछया तुसी इस वाले कित्थों कौन जे? फिर दसिया ते उसने देख के सुन के कि ए गुरु तेग बहादुर महाराज दे सपत्नी महल, जिन्हां ने साडे लई इतना वड्डा बलिदान कीता। कहलगा मां मैं कुम्मा माही, मेरा नाम कर्मा झीवड़ सी, हिंदू सा, पर उन्होंने धक्के नाल जुल्म करदे मैनूं मुसलमान बना लिया। कर्मा दीन करम दीन हो गया, मैनूं कुम्मा माही आखदे हन। ते इन्हें सेवा की रात समय। एक रोपड़ की विधवा बीबी सी लक्ष्मी ब्राह्मणी, उन्होंने पता लगा, सुनेहा भेजिया, उनके घरों प्रशादा साग ते प्रशादा लै आया सी। प्रशादा छकाया माता जी नूं साहिबजादे नूं, इत्थे रहन बसेरा किया। अगले दिन वो लक्ष्मी ब्राह्मणी मिलन भी आई, फिर सेवा की उन्हें प्रशादे पानी दी। माता गुजरी ने 5 सोने दी चूड़ियां अते कुछ सोने दी मोहरां उसनूं दित्तियां। वो नहीं लै रही सी, पर माता गुजरी दा बचन मनदे लै लियां। चेतना कुम्मे माही ने ते ए लक्ष्मी ब्राह्मण जी सेवा की ना, इस बारे बाद चो बाबा बंदा सिंह बहादुर राज भाग कायम किया सी ना, उन्होंने पता लगा। ते लक्ष्मी ब्राह्मणी अते कुम्मे माही जिन्हां ने परिवार दी माता गुजरी ते सदे सेवा की सी भयंकर समय, उसनूं भारी इनाम दिता सी दरबार च। ते प्यारिओ इत्थे गंगू ब्राह्मण जिस दे मन च लोभ आ गया, लालच दा कुत्ता साडे मन च ही आ जांदा। लब कुत्ता कहणगे वो भौंकिया, कहण लगा मैं अपने घर लै जाना वा, ते सोने दी मोहरां दी खुरजी इन्हां कोल इस तरीके लै गया। कहण लगा मेरे पिंड चलो, मेरा पिंड नेड़े वे, उत्थे लै गया। रात्रि अंदर कमरे च विश्राम कर लई। कहणगे उत्थे नौकर का घर समझकर बेफिक्र से हो गए, लगकर गले से दादी के शहजादे सो गए। पर माता गुजरी नेत्र बंद किए हुए सन, पर सिमरन च जुड़े हुए सन।
गंगू ने सोचा सुते हन, अद्धी रात दे समय आया ते कहन लगे सराने थल्लों सोने दी मोहरां दी खुरजी चुक लई। कुछ खड़ाक होया, माता जदों ये बाहर दरवाजे राही निकलदा पिया सी, माता गुजरी नेत्र खोल के देख लिया, पर उस समय कुछ ना आख्या। दिन चढ़े ते आख्या, ए गंगू पुत्र, सोने दी मोहरां दी खुरजी तू रात नूं संभाल के रख लई सी। कहन लगा एक तो मैं तुहानूं अपने घर लैके आ, तुहाडी सेवा कीती, मैनूं चोर बना दिता। कहन लगे चोर नहीं आख्या तैनूं, इतना ही आख्या कि सोने दी मोहरां दी खुरजी तू लै गया सी, संभाल के तू रख ली। कहन लगा मेरे ते झूठा दोष, मैनूं चोर आख्या, मैं हुण तुहानूं अपने घर नहीं रखना, तुहानूं गिरफ्तार करावांगा। बड़ा रौला पान लगा, माता गुजरी रोकिया। कहन लगे सोने दी मोहरां दी गल नहीं, तू शांत हो जा, रोला ना पा। पर रोला पाया ने, लै आया मुरिंडे तो, उत्थे जाके जानी खां ते मानी खां जिहड़े उत्थों दे मुरिंडे दे सन, कोतवाल उन्हां कोल गया। इस तरीके गिरफ्तारी हुई। पर माता गुजर कौर जी ने कहता, गंगू जिस धन दे लोभ विच आके तू ये पाप किया ना, यही धन तेरे मरण का कारण बनेगा, तेनों सजा मिलेगी। होया भी इस तरह सी। बाद चो जो सुबह सरहंद नूं पता लगा ना वजीर खां नूं कि इन्हें धन सोने दी मोहरां रखियां सन, कहणगे वो शाही खजाने जमा करवा लैके आ, जिथे ने दबियां सन उत्थों लभियां नहीं, ते इनू फिर गिरफ्तार कर लिया। फिर कहणगे ये शाही खजाने धन जमा कराने चाहिए, इनू सजा दो, जुत्तियां मारो। जुत्तियां दी मार नाल गंगू तड़प तड़ के आखिर मरिया सी। कहण तो भाव जिस धन लई पाप कीता, उही धन उहदी पाप दी सजा दा कारण बनिया। इधर प्यारे मुरिंडे दी कोतवाली अज भी वो जेल मौजूद है, वो दरवाजा सलाखा अज भी मौजूद है, जिथे एक रात रखा गया गिरफ्तार करके। फिर इथों मुरिंडे तो लै आए 10 पौ नूं सरहंद दी धरती ते ठंडे बुरज च रखिया। फिर कचहरी च पेश किया ते माता गुजरी रात नूं ही बचन किया, देखो मेरे लालो, तुसी शेर बहादुर गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हो, ते शाही दरबार कचहरी तुहानूं लाल दिते जाणगे, डर दिते जाणगे। देखो किते धर्म तो डोल ना जाना, अपने पिता अपने दादे दी पग नूं किते दाग ना ला देना। मां धर्म हेत सीस लग जाई, साडा सीस धर्म दे लेखे लग जाए, सानू बड़ी खुशी होगी कि असी शहीद हो जाइए, असी डोलांगे नहीं। सीस देत पर धर्म ना जाई, ये भावना प्यारिओ। फिर अगले दिन कचहरी च पहुंचे। सूबेदार वजीर खां ने सोचा सी गुरु कलगीधर पातशाह सहज दे तरले मिन्नतां करनगे, जान बख्श दो, रोणगे कुरलाणगे। पर गुरु कलगीधर पातशाह दे सहज तो जदों भरी कचहरी च पहुंचे ते गज वज के आख्या, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता गुरु कलगीधर पातशाह दा ध्यान करदे फतेह बुलाई। सुचानंद बोलिया, ये तुहाडे पिता दा दरबार नहीं, ये सूबेदार वजीर खान दरबार से झुक झुक के सलाम करो, तुहाडी जान बख्शी जाएगी। कहणगे ये सीस किसी दुनियावी बादशाह के झुक नहीं सकदा, सीस कट तां सकदा है। ये सीस केवल अकाल पुरख वाहिगुरू अगे, सच्चे सतगुर अगे झुकदा है। ते प्यारिओ इधर सूबेदार वजीर खां आखण लगा, तुहाडे बाप नूं तां असीं मार दिता है, तुहाडे वड्डे भरा भी मार दिते, कोई सिख जीवदा नहीं असीं छड्डिया, तुहाडी किस्मत चंगी सी, तुसीं बच गए, हुण मुसलमान बन जाओ। ते मुसलमान बनोगे ना, तुहानूं शहजादियां दी तरह रखिया जावेगा। धन दौलत दे अंबार, सोना चांदी हीरे जवाहरात, नौकर चाकर तुहाडे अगे, ते जदों जवान होवोगे तुहाडे सोहणियां शहजादियां नाल निकाह पढ़ाए जाणगे, मुसलमान बन जाओ। कहणगे असी हमरे वंश रीत इम आई, सीस देत पर धर्म ना जाई। असी सीस तां दे देवांगे, शहीद तो हो जावांगे, पर अपना धर्म नहीं छड्डना। बड़े लाल दिते, बड़े लोभ लाल दिते, पर साहिबजादे ना डोले। फिर डर दिता, तुहानूं मौत दे घाट उतार देवांगे। ते साहिबजादे ने गज के उच्ची आवाज आख्या, सुबिया पर्बत हिलाया नहीं हिल जाते, पुत्तर होण शेरां दे, वो भेडां च नहीं रल जाते।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗੀ। 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ। ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਖਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਦਲਾ ਹੀ लेना होगा तो लूंगा मैं इनके बाप से, खुदा महफूज रखे ऐसे पाप से। बदला लेना मैं गुरु गोबिंद सिंह नाल जंग दे मैदान जूझांगा, पर इन्हां मासूम बच्चों ने मेरा की बिगाड़िया, तो इन्हां ते जुलम ना ढा। कुछ सोचा सूबेदार वजीर खां ने, पर इधर कहन लगे सुच्चानंद बोलिया, कहना तुहानू नहीं पता सूबेदार जी, ये सप दे बच्चे सप हुंदे, पुछ लो भावें। कहणगे पुछया सुच्चानंद ने, कहणगे जे तुहानू छड्ड दईए तो तुसी की करोगे? कहणगे पहली गल तो तुसी कदी छड्ड ही नहीं सकदे, तुहाडे च हिम्मत ही नहीं छड्डण दी। ते जे तुसी छड्ड दो ना, तुसी आख दो तुहाडे पिता नू शहीद कर दिता, भरावां नू शहीद करता, कोई सिख नहीं छड्डिया। असी जावांगे जंगल, सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करांगे, सिख इकट्ठे करांगे, जंग दे मैदान जूझण लई आवांगे शस्त्रधारी हो के, ते दुष्टां दा फिर अंत करांगे। सुच्चानंद कहणगा देखिया ये सप दे बच्चे सापण, सप नू मार दिए, सप दे बच्चे नू छड्ड दिए, चंगी गल नहीं। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे तां तुसीं पकड़ नहीं सके, ते ये जे वड्डे हो गए, जवान हो गए, किवें ये दो दा फिर किवें मुकाबला करोगे? सूबेदार वजीर खां ने सोच लिया, पहला तो यतन किया सी किसी तरीके मुसलमान बन जाए, इतिहास के पन्ने ते लिखा जाए कि गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्रा ने सिक्खी नालों इस्लाम धर्म चंगा जानते हुए सिक्खी त्याग के मुसलमान बन गए। लालच दिते, डर दिते, पर देखिया नहीं मनते पे। कह लगा जे नहीं मनोगे ना, तुहानू जिंदा नीयत चिन दिता जाएगा। अगों साहिबजादे आखदे तू सानू लालच ना दे, डर ना दे, जुत्ती दी एक ठोकर ला के ताज तक ठुकरा सकते हैं, नीयत चिना के आपां रोम रोम मुस्कुरा सकते हैं। लै गए वापस। इत्थे होर एक प्रसंग जो भुल गया, उसी मोती राम मेहरे दा, जिसने रात दे समय दुध पिलावन दी सेवा की सी। चेते रखना, भावें ओनू कहा सी उनकी मां ने, देख वे मोती, जे तू गुरु गोबिंद सिंह ने लाला नू दुध पिलावेगा, मां नू दुध पिलावेगा, तो सूबेदार वजीर खां नू पता लग गया वो साडे ते जुल्म ढावेगा। कहूँगा कोई गल नहीं, जिस मां गुजरी ने साडे धर्म की खातर अपने पति का बलिदान दिता, जिस गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने लाल कुर्बान किए, अपना सरबस दा ते लाया, ते मैं अपने परिवार की क्यों सोचा? दुध पिलाया सी इसने, ते बाद चो पता जदों सूबेदार वजीर खां नूं लग्या सी ना,
गंगू ब्राह्मण के रिश्तेदार मंगे के राही जो पता लगा उन्हें मुखबरी की सी, कैद खाने च रखिया। ते समा आया जदों सूबेदार वजीर खां मुकतसर की जंग च हार खा के आया सी, बड़ा दुखी सी। गुस्से च आके ने मोतीराम मेहरा नूं आख्या नूं चाबुक मार मार के फिर कोलू च पीड़ देवो। भरे बाजार च शाही चौक च भरे बाजार च चाबुक मार मार के अध मोया करके इनू भी, इनकी घर वाली नूं भी, इनके छोटे बच्चे नूं भी ते बजुर्ग मां नूं कोलू च पीड़ के शहीद किया सी। ये मोती राम मेहरा इन्हें बड़ा वड्डा बलिदान दिता, कुर्बानी की। इन्हें दोनों रातों नूं दुध पिलाने की सेवा की सी। ते प्यारिओ तीसरा दिन 13 पो का दिन आया। कह लगे जे नहीं मनते ना हुण तुहानूं असीं मिटा देना, मुसलमान बन लई आखदे पे। कहेंगे सानूं मुसलमान बन लई आखदा पे, पहला आप तो मुसलमान बन। वो तेरा औरंगजेब बादशाह दा मुसलमान बनया नहीं, सानू मुसलमान बनने की गल आखदा पे। जे वो सच्चा मुसलमान हुंदा ते कदी अपने बीमार बाप शाहजहां नूं कैदी ना बनांदा, आगरे दे कैदखाने च रखदा, उन्होंने तड़पा तड़पा के जहरीला भोजन दे के ना मारदा, अपनी पैर रोशनावा दा कतल ना करवाउंदा। वो शाही तकली ने अपने भरावां नूं कतल कीता, आधा जुलम ढाया। वो कैसा मुसलमान? सच्चा मुसलमान तो मुसलमान मोम दिल होवे। सच्चा मुसलमान जुलम करता नहीं, जुलम मिटाउंदा है। सच्चा मुसलमान तो जिन्हों असी भी नमस्कारा करते मत्था टेकते ओ हन बाबा फरीद जी। तू सानू मुसलमान बन लिया आखदा पे, पढ़ के कुरान बाप को जो करता कैद हो। भावें कुरान शरीफ पाठ करता है पर अपने बाप नूं कैदी बनाया। पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद हो। पिता का मरना जिसको खुशी की नवैद हो, पिता मरे उन्हें खुशी मनाई। कतले बिरादरा जिसे मामूली शहद हो, भरावां दे कतल किते। नेकी की इससे खलकत को क्या उम्मीद हो, उन्हें तो असीं नेकी दी की उम्मीद कर सकते हैं। तू आखदा तुहानू मिटा देवांगे, असी नहीं मिटना। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। हाँ असी जान देवांगे, सानू कुर्बानी देनी पवेगी। असी कुर्बानी देवांगे तां ही तुहाडा ये झूठ दा राज, जुलम दा राज मिटना है। तुहाडे जुलम दी जड़ां पुट्टण लई सानू कुर्बानी देनी पैनी है। असी कुर्बानी देवांगे तुहाडा राज पाग मिटेगा ते जिहड़े बेगुनाह लोग मजलूम उन्हां दी जानां बच जाणगीआं। दूजियां दे जानां बचाने लई असीं अपनी जान देवांगे। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम सिरों पर उठा चले। गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। सिखा दा राज इत्थे ही आरंभ होवेगा। जिथे साडियां शहादतां होणगीआं उत्थे ही खालसे दे वड्डे वड्डे निशान सिर झुलणगे। इत्थे ही खालसे दा सिक्का भी जारी होवेगा। ते कहणगे शहजादे ने वचन करता, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। इधर फिर इन्होंने कहर ढाया। शाशल बेग ते बाशल बेग अगे होए, जिंदा नींद चिन के फिर शहीद किया। इधर मोतीराम मेहरा दौड़ के गया सी दीवान टोडरमल जी कोल। उन्होंने विचार की किसी तरीके आप साहिबजादे दी जाना बचा लीए। वो सोने दी मोहरां सोच के इकट्ठियां कीतियां कि सोना तोल के साहिबजादे दे भार दे बराबर दे देवांगे ते असीं जान बचा लवांगे। ऐसी पहला नीति हुंदी सी, किसी दी जान बचानी होवे, किसी नूं फांसी लगनी होवे, उन्ना बराबर सोना तोल के दे दो ते जान छड़ सकदे सन। पर जदों सोने दी मोहरां लैके पहुंचिया ते शहादतां हो चुकियां सन। उल्टा साहिबजादियां दी भी ते माता गुजरी जी भी, जिन्हां नूं बुढ़ तो धक्का मार के शहीद कीता। भावें एक गल कि साडे ते कलंक ना लगे कि बजुर्ग 81 साल की बजुर्ग माता नूं धक्का मारिया, साडे ते कलंक ना लगे। यही आख्या जी वो दुखी हो गए, साहिबजादे दी खबर सुन के उन्होंने छाल मारती, आत्म हत्या कर ली। नहीं प्यारो, माता गुजरी जी ऐसा काम नहीं कर सकते, वो तो दृढ़ निश्चय वाले। हाँ इन्होंने जुलम ढाया, फिर शरीरां नूं पिछले पासे सुट दिता सी हंसला नदी दे कोल। ये सोच के ये झुके नहीं, इन्होंने ये नहीं मनी। हुण जंगल के शेर आएंगे, गिरजा आएंगे, उड़ उड़ के इन्हों मांस नोच नोच के खाणगे, इन्हों का शरीर रोलांगा।
पर इतिहास आखदा है 48 घंटे उत्थे बब्बर शेर आके गुरु कलगीधर पातशाह दे साहिबजादियां दी अते माता गुजरे पवित्र शरीरां दी रखवाली करदा रहा। बब्बर शेर आके उत्थे बैठ गया। इन्हां ने आख्या कलंगे असीं शरीर नहीं देने, शरीर तां तुसीं लवो जे तुसीं जगह जिथे संस्कार करने पहला जगह तक खरीद लो। ते टोडर मल आखन लगा दस कितना धन तैनूं चाहिए, मैं जमीन खरीदण लई तैयार वां। कहणगे सोने दी मोहरां रखो उतनी जगह ते। जदों कह रही सोने दी मोहरां रखन लगे कहणगे इदां नहीं। सूबेदार वजीर खान होर लालच दा कुत्ता भौंकिया, कहंदे खड़ियां मोहरां रखो। ते टोडर मल जिहड़ा वड्डी कुर्बानी लई तैयार सी उहने सोने दा लालच नहीं, सोने दी मोहरां खड़ियां रख के वो जमीन खरीदी। चेते रखना इतिहास है, महान सिख विरसा है। संसार च इतनी महंगी जमीन ना किसी ने खरीदी है ना किते विकी है। गुरु के लालां दे फिर उत्थे अंतिम संस्कार किए गए। फिर कुछ समय होया सी, लगभग कुछ साल ही होए सन। 14 मई सन 1710 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आए ते उस सरहंद नूं फिर गर्क किया। उस दुष्ट सूबेदार वजीर खान का अंत किया। जोगी जी लिखते, जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद जिथे 32 बाजार हुंदे सन, वड्डे शाही महल हुंदे सन, बस्ती सरहंद ईटों का ढेर थी। कहण तो पा फिर इत्थे खालसे दे निशान साहब चलाए गए, खालसे राज भाग दे सिक्के जारी किए गए। ये महान कुर्बानियां गुरु के लालां दियां निक्कियां जिंदा वड्डे साके कर विखाए। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे चरणें च जदों इत्थे साबो की तलवंडी पुछिया सी, माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी बहुत लंबेरे समय बाद मिले सन, दिल्ली तो आए सन इधर दमदमा साहब, ते पुछिया सी मेरे साहिबजादे कित्थे हन। कहणगे खालसा पुत्र सानू ज्यादा प्यारा। ठीक है, चारे लाल भी बड़े प्यारे सन, पर साडा खालसा जो खास रूप है, बद नज़र वाले, जुल्म करने वाले, भैड़ी नज़र वाले भैड़ी नज़र लगाना चाहते हैं। कोई माँ अपने पुत्र तो मिर्चां वारदी है, कोई माँ अपने पुत्र के सिर तो पानी वारदी है, कोई धन वारदी है मेरे पुत्र नूं किसी की नज़र ना लग जाए। असीं सोचा खालसे पुत्र नूं किसी की बद नज़र ना लगे, क्योंकि जालमां ने जुल्म कमाउणा नज़र ना लगे। इस वास्ते असीं खालसे पुत्र तो अपने चारे लाल वार दिते हन। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। सच्चे सतगुरु ने अपने पुत्र बनाया है। असी गुरु कलगीधर पातशाह दे पुत्र सपुत्र बन के रहिए, भाव हुकम मनते हुए अमृत की दात लै लीए। फिर साडे माता माता साहब कौर जी होणगे, पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, वासी असी आनंदपुर साहब दे, ते जन्म अस्थान साडा तखत श्री केसगढ़ साहब हो जाएगा। सतगुरु जी कृपा करन, अपने दनों करो नाम का खजाना बख्शिश करना जी। सतगुरु जी रहमत वरताउन।